Hello friends, welcome back to this channel. In today's video, we are going to discuss the most important questions and answers from cardiology unit of medicine which are commonly asked in university theory examinations. We will go through some selected important questions along with their answers so that we can revise quickly and write better answers in the exam. So let's get started. This is the list of short answer questions and long answer questions which can be asked in theory examination. Now let's see some of the important questions. Then the first question is unstable angina. In introduction part, we have to write three important points. Patients with unstable angina have a high risk of developing myocardial infarction or sudden death as compared to patients with stable angina. Thus, they need aggressive management in hospital. They have normal ECG or non-ST elevation myocardial infarction. And there is no elevation of cardiac markers. So these are three important points we have to write in introduction part. Then in section B, there is presentation. In presentation, we have to write the types of the angina. First is rest angina. Angina occurring at rest, prolonged for greater than 20 minutes. Then second type is new onset angina. New onset angina of at least class 3 CCS. What is CCS? CCS is Canadian Cardiovascular Society classification. According to this class, pain occurs even with the minimum activity. Then third type is increasing angina. Previously diagnosed angina that has become more frequent and longer in duration. Then in section C, we have to write risk groups and management. We have to categorize the risk groups in three blocks. Block 1, high risk groups. Block 2, intermediate risk. And block 3, low risk. Now we will see the high risk group conditions. If there is prolonged chest pain for greater than 20 minutes plus ECG showing a transient ST elevation, sustained ST depression or deep T wave inversion. Then if the biochemical markers are abnormal, that is troponin or CKMB, and if acute myocardial infarction in last 4 weeks, and if there is hemodynamic compromise, then these are some of the high risk conditions. We have to write in the management part aspirin plus heparin, low molecular weight heparin, glycoprotein 2B3A antagonist. These are strong antiplatelet drugs, and PCI means percutaneous coronary intervention. Then block 2 is of intermediate risk. If there is no high risk features plus ongoing chest pain, borderline troponin I, diabetes mellitus or hypertension, or if there is a previous percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass grafting, then in this condition we have to give aspirin plus clopidogrel, unfractionated heparin or low molecular weight heparin, and percutaneous coronary intervention. Then in block 3 there is low risk groups. In this there is no high and intermediate risk, chest pain which is of single episode, ECG normal, and there is no history of coronary artery disease. In this condition, no heparin, only observe the patient. So in this way, we have to write the answer of this question in three headings: introduction, presentation, and risk groups and its management. Then let's move to the next question. Next question is of Marfan syndrome. So how to write the answer of this question? We have to write the answer of this question in four headings. First is of introduction. Second, we have to write clinical features. Third, we can write investigation. And fourth, we can write management. In introduction part, it is an autosomal dominant disorder of connective tissue, and it is due to fibrillin gene mutation on chromosome 15. So what happens in the Marfan syndrome? There is weakening of media of aortic root which causes dilatation, regurgitation and dissection. एओर्टा की वॉल के 3 लेयर्स होते हैं. इनर वाला लेयर जो होता है उसको इंटीमा कहा जाता है. मिडिल वाला लेयर होता है तो
वो मीडिया होता है। मीडिया इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। और सबसे बाहर का जो होता है वो होता है एडवेंशिया। जब मीडिया वीक हो जाता है तो एओर्टिक डायलेटेशन होता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है और डिसेक्शन भी होता है। अभी मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है कि फाइब्रिलिन जिन का डिफेक्ट हो जाता है, तो इलास्टिक फाइबर्स वीक हो जाते हैं, तो जो एओर्टिक मीडिया थी वो वीक हो जाती है। एंड इस वीकनेस के 3 मेजर रिजल्ट्स आते हैं। ये 3 मेजर रिजल्ट्स कौन से हैं? एओर्टिक डायलेटेशन होता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है एंड एओर्टिक डिसेक्शन होता है। अभी ये डायलेशन क्यों होता है? क्योंकि वीक वॉल प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाती, सो एओर्टिक रूट डायलेट हो जाते हैं। एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि एओर्टिक रूट डायलेट होने की वजह से एओर्टिक वॉल के लिफलेट्स क्लोज नहीं हो पाते, सो ब्लड वापस एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में लीक करता है, तो इसको कहा जाता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एंड एओर्टिक डिसेक्शन में क्या होता है? वीक मीडिया के बीच से ब्लड घुस जाता है, सो वॉल के लेयर्स अलग हो जाते हैं, सो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अभी हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देयर इज माइट्रल वॉल प्रोलैप्स। सो व्हाट इज दिस माइट्रल वॉल प्रोलैप्स? माइट्रल वॉल के लिफलेट्स बलून की तरह लेफ्ट एट्रियम में बल्ज करते हैं ड्यूरिंग सिस्टोल। मार्फन में कनेक्टिव टिश्यू वीक होता है एंड वॉल्स फ्लफी बन जाती है। देन माइट्रल रिगर्जिटेशन। अब ये कब होता है? जब माइट्रल वॉल प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में वापस लीक करता है। देन सेकेंड इज आईज। आईज में क्या होता है? लेंस डिसलोकेशन सुपेरियर एंड टेम्पोरल। देन थर्ड इज स्केलेटल सिस्टम। इन स्केलेटल सिस्टम देयर इज tall stature, arachnodactyly. Arachno means spider, dactyly means fingers. Long, thin, spider-like fingers मार्फन का एक क्लासिक साइन है। एंड देन रिस्ट एंड थंब साइन। अभी रिस्ट साइन क्या होता है? जब पेशेंट अपनी रिस्ट को दूसरे हाथ से पकड़ता है तो थंब और लिटिल फिंगर ओवरलैप हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है रिस्ट साइन। एंड थंब साइन क्या होता है? इसको स्टेनबर्ग साइन भी कहा जाता है। थंब साइन में क्या होता है? थंब को फिस्ट के अंदर बंद करते हैं तो थंब पाम के बाहर निकल जाता है, इसको कहा जाता है थंब साइन। एंड इसमें जॉइंट हाइपर मोबिलिटी भी होती है, स्कॉलियोसिस भी होता है। स्कॉलियोसिस का मतलब क्या होता है? स्पाइन का साइडवेज कर्वेचर होना। मार्फन में क्या होता है कि बोन्स लॉन्ग एंड वीक होती है, तो इसीलिए स्पाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। देन चेस्ट डिफॉर्मिटी एंड हाई आर्च्ड पैलेट, these are some of the features found in skeletal system. Then abdominal aortic aneurysm. In this, the critical diameter of aorta becomes 4.5 to 5 centimeter. Then section C में हमें लिखना है investigation. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर क्लिनिकल फीचर्स लिखे, फिर इन्वेस्टिगेशंस। अभी इन्वेस्टिगेशंस में हमें लिखना है चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी एंड MRI एंड CT टू डिटेक्ट एओर्टिक डायलेटेशन एंड डिसेक्शन। एंड लास्ट में हमें लिखना है मैनेजमेंट। इन पेशेंट्स विथ प्रोग्रेसिव एओर्टिक डायलेटेशन, बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायलेटेशन एंड रप्चर, तो इसीलिए हम बीटा ब्लॉकर्स रिकमेंड करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायलेटेशन एंड रप्चर। एंड लास्ट में इलेक्टिव रिप्लेसमेंट ऑफ एओर्टा। अभी इलेक्टिव क्या होता है? एक प्लांट सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है कि जब एओर्टिक रूट का डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो वीक पार्ट ऑफ एओर्टा सर्जिकली रिप्लेस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि रप्चर या डिसेक्शन से पहले प्रिवेंट किया जा सके, तो इसीलिए मार्फन सिंड्रोम की इस केस में बीटा ब्लॉकर्स प्लस इलेक्टिव सर्जरी लाइफ सेविंग मानी जाती है। तो इस तरीके से हमें मार्फन सिंड्रोम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर क्लिनिकल फीचर्स, फिर इन्वेस्टिगेशन एंड बाद में मैनेजमेंट। देन अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। इन एओर्टिक रिगर्जिटेशन सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है।
एओर्टिक रिगर्जिटेशन में ब्लड एओर्टा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम ओवरलोडेड हो जाता है। सो जब पेशेंट लेट जाता है, लेग से वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। सो ऑलरेडी ओवरलोडेड लेफ्ट वेंट्रिकल हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए पल्मोनरी कंजेशन होता है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सो अभी हम देखेंगे इसको किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। इसका आंसर लिखते वक्त हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है इनकम्पिटेंसी ऑफ एओर्टिक वॉल which causes backflow of blood from aorta through aortic wall into left ventricle during diastole। उसके बाद हमें लिखनी है इटियोलॉजी। इसमें दो टाइप्स के एओर्टिक रिगर्जिटेशन जो होते हैं, एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड क्रोनिक एओर्टिक रिगर्जिटेशन। इसके कॉजेस लिखने हैं। सो एक्यूट के लिखेंगे हम ट्रॉमा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एक्यूट रूमेटिक फीवर, रप्चर साइनस ऑफ वल्सल्वा एंड एओर्टिक डिसेक्शन। इसको याद करने के लिए हम न्यूमोनिक यूज कर सकते हैं तारा आई। तारा आई। टी फॉर ट्रॉमा, ए फॉर एक्यूट रूमेटिक फीवर, आर फॉर रप्चर साइनस ऑफ वल्सल्वा एंड ए फॉर एओर्टिक डिसेक्शन एंड आई फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। देन क्रोनिक एओर्टिक रिगर्जिटेशन के कॉजेस में हमें लिखना है एओर्टिक वॉल इशू एंड एओर्टिक रूट इशू। एओर्टिक वॉल इशू में हमें लिखना है कंजेनाइटल क्वाड्रिक कस्पिड वॉल, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक हार्ट डिसीज एंड ट्रॉमा। एंड एओर्टिक रूट इशू में लिखना है सिफिलिटिक एओर्टाइटिस, कोगन, टाकायासु, बेहेसेट्स, मार्फन एंड ईडीएस। सिफिलिटिक एओर्टाइटिस में क्या होता है? सिफिलिटिक एओर्टाइटिस में वासा वैसोरम होता है, मतलब एओर्टा की जो स्मॉल वेसल्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसे एओर्टिक मीडिया वीक हो जाती है। फिर कोगन एक रेयर ऑटोइम्यून डिसीज है। देन टाकायासु आर्टेराइटिस, ये लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस होता है जो मोस्टली यंग फीमेल्स में पाया जाता है। देन बेसेट्स डिसीज, ये सिस्टेमिक वास्कुलाइटिस होता है, इसमें आर्टरीज एंड वेन्स इन्वॉल्व होती है। देन मार्फन सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है कनेक्टिव टिश्यू का। एंड ईडीएस एलर्स डैनलोस सिंड्रोम, ये इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जो कि होता है कोलेजन की डिफेक्ट से। नेक्स्ट हमें लिखना है क्लिनिकल फीचर्स। एज एंड जेंडर, मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है फीमेल्स से एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड इट बिगिंस एट लेट 50s। देन एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन की क्लिनिकल फीचर्स, देन क्रोनिक एओर्टिक रिगर्जिटेशन के फीचर्स हम देखेंगे। इन एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन देयर इज सीवियर सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सो एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है? सीवियर सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। देन चेस्ट पेन होता है इफ मायोकार्डियल परफ्यूजन इज रिड्यूस्ड एंड रैपिडली डेवलपिंग हार्ट फेलियर, पल्मोनरी इडिमा एंड कार्डियोजेनिक शॉक। So these are some of the clinical features of acute aortic regurgitation. Now we will see chronic aortic regurgitation. Relatively asymptomatic for 10 to 15 years. There may be palpitations, especially on lying down. There is exertional dyspnea, usually first symptom, orthopnea and PND. What is PND? PND is paroxysmal nocturnal dyspnea, which is sudden breathlessness at night 2 to 4 hours after sleeping. Then angina pectoris due to decreased myocardial perfusion and increased demand of oxygen. Then congestive heart failure and sudden cardiac death. And in the next part we have to write the signs of aortic regurgitation. In heart sounds we have to write S1, S2, S3 and S4. S1 is soft S1, S2 A2 component soft in rheumatic heart disease and loud and timbre like in syphilitic aortitis. Then S3 gallop and S4 prominent in left ventricular hypertrophy. Then second is murmurs. In murmurs there is early diastolic murmur, Ornstein-Flint murmur which is soft, low pitched, rumbling, mild diastolic murmur, and Cole-Cecil murmur radiating to axilla. Then pulse, which is prominent, large volume and collapsing pulse.
then wide pulse pressure, then apex beat displaced inferiorly towards axilla, which is hyperdynamic, and jugular venous pulse is not raised. So in this way we have to write the answer of the question aortic regurgitation. First we have to write introduction, etiology, acute and chronic की अलग अलग, then clinical features, acute के अलग, chronic के अलग, and last में signs लिखने हैं. Then let's see the next question, that is jugular venous pulse. इसका अगर SAQ आया तो हमें क्या क्या लिखना है इसमें. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जुगुलर विनस पल्स क्या होता है. तो जुगुलर विनस पल्स राइट एट्रियम के प्रेशर चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है. ये कार्डियक साइकिल प्लस रिस्पिरेशन के साथ चेंज होता है, इसीलिए जुगुलर विनस पल्स राइट आर्टेरियल प्रेशर का इनडायरेक्ट इंडिकेटर होता है. तो अब हम इसको एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन में हमें लिखना है इट इज oscillating top of undulating vertebral column of blood in right internal jugular vein that faithfully reflects the pressure and volumetric changes in the right atrium that varies with all the phases of cardiac cycle and respiration. Then second point हमें लिखना है उसकी position. Semi reclining position with 45-degree angle between trunk and bed, and turn the head slightly towards left shoulder so that the neck muscles are relaxed. So semi reclining position होनी चाहिए और 45 डिग्री एंगल होना चाहिए between bed and trunk, and head को slightly left side turn करते हैं. Third point is measurement. By using tool ruler method, one placed horizontal to the upper level of pulsation and another taking the vertical distance of that ruler from the sternal angle. देन फोर्थ पॉइंट लिखना है हमें नॉर्मल जुगुलर विनस पल्स, वो कितना होता है, लेस देन 7 mmHg. अब हम देखेंगे एलिवेटेड जुगुलर विनस पल्स के कॉजेस. जुगुलर विनस पल्स एलिवेट होता है मतलब राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है. तो इसके कॉजेस, सबसे पहला कॉज है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर. ये क्यों होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो राइट एट्रियम में बैक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल फेलियर होता है. देन सेकेंड कॉज इज रीनल फेलियर. फ्लूइड रिटेंशन की वजह से वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से जुगुलर विनस पल्स इंक्रीज हो जाता है. थर्ड इज ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड होने की वजह से जुगुलर विनस पल्स इंक्रीज होता है. देन सुपीरियर वेना क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन. वीनस ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से नेक वेन्स डिस्टेंड हो जाती है. देन फिफ्थ इज पेरिकार्डियल कंप्रेशन. हार्ट एक्सपांड नहीं कर पाता तो वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. देन सर्कुलेटरी ओवरलोड. एक्सेस फ्लूइड सर्कुलेशन में आ जाता है, इसकी वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है. देन सेवेंथ इज आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट विथ माइट्रल वॉल डिसीज. पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है और उसकी वजह से जुगुलर विनस पल्स इंक्रीज होता है. देन एट्थ इज एक्सेसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन. देन लोअर जुगुलर विनस पल्स के कॉजेस देख लेते हैं, डिहाइड्रेशन, हाइपोवॉल्यूमिया. एंड नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है वेव पैटर्न. इसकी डायग्राम निकालनी है और हर एक वेव को एक्सप्लेन करना है. ए वेव किस वजह से आई है, A wave is due to active atrial contraction. Then C wave is due to bulging of tricuspid wall into right atrium. Then X wave is due to continued atrial relaxation. Then X dash wave is due to descent of floor of right atrium. Then V wave is due to passive atrial venous filling. And at the end Y wave, which is due to opening of tricuspid wall and rapid inflow of blood from right atrium into right ventricle. So in this way we have to write the answer for jugular venous pulse. सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर पोजीशन, फिर मेजरमेंट, देन नॉर्मल जुगुलर विनस पल्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर एलिवेटेड जुगुलर विनस पल्स के कॉजेस लिखेंगे, देन लोअर्ड जुगुलर विनस पल्स के कॉजेस, देन वेव पैटर्न लिख के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मतलब हार्ट के
एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन, मेनली हार्ट वॉल्स का। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ब्लड के जर्म्स जो होते हैं वो हार्ट के अंदर चिपक जाते हैं और इन्फेक्शन कर देते हैं, तो इसकी वजह से वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट वॉल्स और म्यूरल एंडोकार्डियम। देन उसकी डेफिनेशन लिखनी है हमें, इट इज़ द एंडोकार्डियल इन्फेक्शन of cardiovascular structures by microbes. These structures include heart valves, atrial and ventricular endocardium, large intrathoracic vessels. Then उसके types लिखने हैं, it may be bacterial, viral, fungal or rickettsial, and also it can be acute, subacute और chronic. Then फोर्थ पॉइंट में हमें उसके causative organisms लिखने हैं. First is Streptococcus viridans in native valve, Staphylococcus epidermidis in prosthetic valve, then Staphylococcus aureus in IV drug abusers, then fourth is Enterococci, then other Streptococci, gram-negative bacilli, fungal and culture-negative. All these are causative organisms. Then culture-negative endocarditis. Culture-negative endocarditis कब होता है? जब ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 ब्लड कल्चर्स लेने के बाद भी और 7 दिन कल्चर करने के बाद भी ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, तब होता है कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस, और ये 5 to 10% केसेस में मिलता है। तो सबसे पहले हमें इसमें डेफिनेशन लिखनी है इसकी, एंडोकार्डाइटिस विदाउट इटियोलॉजी फॉलोइंग इनोकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 3 samples in standard blood culture systems with negative culture after 7 days of inoculation and subculturing constitutes 5 to 10% of cases. Then इसके causes लिखने हैं, prior antibiotic therapy, inadequate quantity of blood sample for culture, then anaerobic infection, non-infective endocarditis and right-sided endocarditis. अब हम देखेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या इंडिकेट करते हैं? कौन कौन से लोगों में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है? तो सबसे पहले जो आते हैं वो है अंडरलाइंग हार्ट डिसीज, जिनके अंदर पहले से ही हार्ट डिसीजेस है। सो अबाउट 75% पेशेंट्स हैव अंडरलाइंग हार्ट डिसीज एंड कंजेनाइटल हार्ट डिसीज like aortic valve stenosis is most common, then ventricular septal defect, atrial septal defect, then tetralogy of Fallot, idiopathic subaortic stenosis. इनमें abnormal valves होने की वजह से रफ सरफेस होता है एंड बैक्टीरिया इजीली चिपक जाते हैं, तो इसीलिए इनमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। देन मेजर रिस्क फैक्टर्स, फर्स्ट इज आईवी ड्रग अब्यूज़र, इनमें डायरेक्ट बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। देन प्रोस्थेटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, आर्टिफिशियल वॉल्व पर बैक्टीरिया इजीली एडहेर करते हैं। देन थर्ड इज इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस, इसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इन कंडीशंस में डायबिटीज़ मेलाइटिस, मैलिग्नेंसी, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, साइटोटॉक्सिक थेरेपी और न्यूट्रोपिनिया। सो इम्यूनिटी कम होने की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। देन बैक्टीरिया, ब्लड में बैक्टीरिया की एंट्री होती है एंड इसके कॉमन सोर्सेज कौन कौन से हैं? ENT, टॉन्सिलेक्टोमी, एडिनेक्टोमी, देन सर्जिकल ऑपरेशंस, इंसिजन, बायोप्सी, देन इस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन ड्रेनेज ऑफ abscess or empyema. In oral cavity, there are dental procedures involving handling of gingival tissue or periapical teeth region, for example dental extraction, suture removal और root canal. इसलिए डेंटल प्रोसीजर से पहले एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है हाई रिस्क पेशेंट्स में। देन जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शंस, gastrointestinal infections, for example cytoscopy during enterococcal uterine tract infections, then skin and musculoskeletal infections. So all these are the predisposing factors of infective endocarditis. Then हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, एंडोकार्डियल डैमेज हो रहा है, मतलब वॉल पर इंजुरी या डिन्यूडेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से रफ सरफेस बन जाता है। एंड स्टेप 2 में क्या हो रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेराइल थ्रोम्बस।
क्यों हो रहा है ये? बिकॉज प्लेटलेट्स प्लस फाइब्रिन डिपॉजिट हो जाते हैं एंड स्टेराइल वेजिटेशन बनती है। देन थर्ड स्टेप में एडहेरेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, transient bacteremia which leads to microorganisms gain access in the circulation and that's why it gets deposited in the sterile vegetation। इसमें क्या हो रहा है, डेंटल और सर्जिकल प्रोसीजर से ब्लड में बैक्टीरिया आ जाते हैं तो बैक्टीरिया स्टेराइल वेजिटेशन पर चिपक जाते हैं। एंड स्टेप 4 में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन वेजिटेशंस, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, इन्फेक्टेड वेजिटेशन बन जाती है। देन एम्बोलाइजेशन, फिफ्थ स्टेप में एम्बोलाइजेशन होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलाई होने के बाद स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू द विसरल ऑर्गन्स लाइक किडनी, स्प्लीन, ब्रेन एंड देन अपसेस, इन्फेक्शन एंड आर्थराइटिस बन जाता है। सो वेजिटेशन का कुछ पार्ट टूटकर किडनी, स्प्लीन, ब्रेन में जा सकता है विच लीड्स टू एब्सेस, इन्फेक्शन और आर्थराइटिस। देन सिक्स्थ स्टेप इज इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिशन। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होते हैं और जिसकी वजह से किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, स्किन में वास्कुलाइटिस हो जाता है, हेमाचूरिया भी हो जाता है एंड सेरिब्रल वेसल वास्कुलाइटिस भी हो सकता है। सो डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस causes focal glomerulonephritis and microscopic hematuria, diffuse glomerulonephritis, perisplenitis and cerebral vessel vasculitis causes cerebrovascular accident। सो इस तरीके से हमने ये पैथोजेनेसिस देखी, तो हमें ये स्टेप वाइज ही लिखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। हार्ट के वॉल्स पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है जो स्लोली डेवलप होता है, जैसे वीक्स से मंथ्स तक, एंड मोस्टली ऑलरेडी डैमेज्ड वॉल्व या कंजेनिटल हार्ट डिसीज में ये होता है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स पर। सो इट डिपेंड्स ऑन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड प्रेजेंस ऑफ प्रीडिस्पोजिंग कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। इट मे बी एक्यूट और सब एक्यूट। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। इसमें सिम्टम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, अनयूजुअल टायर्डनेस होती है, वेट लॉस होता है, फटीग होता है, देन लॉस ऑफ अपेटाइट, लॉसिट्यूड एंड वीकनेस आ जाता है पेशेंट को। देन फीवर कैसी होती है, परसिस्टेंट, इंटरमिटेंट, लो और हाई ग्रेड फीवर होती है मोस्ट कॉमनली, एंड विथ नाइट स्वेट्स, चिल्स एंड ट्रिगर्स। ये सब क्रोनिक इन्फेक्शन के साइन होते हैं। देन हम फिजिकल साइंस देखते हैं। इसमें क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आता है जिसमें नेल्स बल्ब जैसी हो जाती है एंड एक क्रोनिक इन्फेक्शन का साइन दिखाता है। देन फेस और लिम्स का ब्राउनिश पिगमेंटेशन होता है। देन साइनोसिस, ब्लू डिस्कलरेशन होता है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। देन स्प्लिनोमेगैली एंड हेपेटोमेगैली समटाइम्स, मीन्स स्प्लीन और लिवर थोड़ा बड़ा हो जाता है ड्यू टू क्रोनिक इम्यून एक्टिवेशन। एंड देन सेकेंड हम देखते हैं एविडेंस ऑफ न्यू वॉल्व लेजन। देयर में बी न्यू मर्मर्स, नया मर्मर सुनाई देना, स्पेशली डायस्टोलिक मर्मर विच इज डायग्नोस्टिक। सो पर्टिकुलरली अ डायस्टोलिक murmur which is diagnostic, and changing murmurs due to change in cardiac output, temperature and hematocrit। changing murmurs में क्या होता है, cardiac output, temperature and hematocrit change होने की वजह से murmur change होता है। then third point is evidence of embolism। अभी embolism क्यों होता है, बैक्टीरिया प्लस क्लॉट बन के एम्बोलाई बन जाता है और ये एम्बोलाई बन के ऑर्गन्स में जब जाते हैं तब नए नए सिम्टम्स डेवलप करते हैं, जैसे कि क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन, स्किन में जाके वो पेटिचो और परप्यूरा, जैसे जो पेटिचो और परप्यूरा
जो छोटे रेड पर्पल स्पॉट्स होते हैं ये माइक्रोथ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कारण हो जाते हैं। देन सब कंजक्टाइवल स्प्लिंटर हेमोरेजेस, जो आँख के सफ़ेद पार्ट में रेड पैचेस बना देते हैं। देन स्प्लिंटर हेमोरेजेस, नेल के नीचे रेड ब्राउन लाइंस होती है, इसको फ्लेम शेप्ड लेजन्स भी कहा जाता है। सेकेंड आर रॉथ स्पॉट्स। रॉथ स्पॉट्स ये रेटिना के हेमोरेजेस होते हैं जो सेंटर में पेल स्पॉट दिखता है एंड ये फंडोस्कोपी पर दिखते हैं। थर्ड इज जेनवेल एजेंट्स। सो क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस में हमें 3 टाइप्स के लेजेंस याद रखने हैं। फर्स्ट इज फ्लेम शेप्ड लेजेंस, देन सेकेंड इज रॉथ स्पॉट्स, थर्ड इज जेनवेल एजेंट्स। देन सेकेंड इज सेप्टिक इन्फार्क्ट्स और अपसेस। इसमें स्प्लीन, किडनी एंड ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। स्प्लीन में पेनफुल स्प्लीनोमेगेली होती है, मतलब स्प्लीन की साइज़ बड़ी हो जाती है और ये काफ़ी पेनफुल होता है। एंड किडनी में लॉयन पेन, हेमेचुरिया एंड रीनल फेलियर होता है। ब्रेन में कन्वल्जन्स, हेमीप्लेजिया, लॉस ऑफ विजन एंड अफेजिया होता है। ये सब एम्बोलाइजेशन टू ऑर्गेन्स के रिजल्ट होते हैं। देन थर्ड इज माइकोटिक एन्यूरिज्म्स। बैक्टीरिया वेसल वॉल को इन्फेक्ट करता है, वॉल वीक हो जाती है और एन्यूरिज्म बन जाता है एंड ये रप्चर का रिस्क भी बनाता है। सो एविडेंस ऑफ एम्बोलिज्म में हमें ये 3 टाइप्स के लिखने हैं। सबसे पहला है क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस, इसमें 3 टाइप्स के लेजेंस, फ्लेम शेप्ड लेजेंस, रॉथ स्पॉट्स एंड जेनुवेल लेजेंस। देन सेप्टिक इन्फार्क्ट्स और अपसेस, इसमें स्प्लीन, किडनी और ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, एंड माइकोटिक एन्यूरिज्म्स। देन फोर्थ एविडेंस देखेंगे, एविडेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेनन। इसमें हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट इज ऑस्लर नोड्स विच आर tender, painful, small, swollen, erythematous subcutaneous papules on pulp of distal finger. Then second point लिखना है रॉथ स्पॉट्स के बारे में, जो कि है subconjunctival circular retinal hemorrhages with white or pale centers and spots composed of fibrin. Then third point हमें लिखना है focal segmental glomerulosclerosis के बारे में. It is due to deposition of antigen antibody complex in glomeruli presents with microscopic hematuria. And then हमें investigations लिखने हैं. Investigations में सबसे पहले हमें लिखना है aim. aim में हमें 3 points लिखने हैं. To confirm the diagnosis, to identify the causative organism and start treatment, and third is to access a response to therapy. इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहली जो टेस्ट है वो है ब्लड कल्चर. ब्लड कल्चर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं. एटलीस्ट 3 सैंपल्स शुड बी टेकन फ्रॉम 3 डिफरेंट साइट्स ओवर 24 आवर्स. देन सेकेंड पॉइंट लिखना है असेप्टिक टेक्निक शुड बी फॉलोड, एंड थर्ड बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक कल्चर्स नीडेड. तो हमें ब्लड कल्चर करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में कंटिन्यूअस बैक्टीरिया होता है. देन सेकेंड टेस्ट इज सीरोलॉजी. इट इज़ यूजफुल व्हेन कल्चर्स आर नेगेटिव ड्यू टू कॉक्सिएला, क्लैमाइडिया, लेजियोनेला एंड बार्डोनेला. देन थर्ड टेस्ट इज ECG टू डिटेक्ट complications like conduction abnormalities like AV block and myocardial infarction due to emboli. And fourth investigation is chest X-ray, which shows evidence of cardiomegaly, heart failure, pulmonary edema, pulmonary emboli और abscess. So investigations में हमने ये 4 इन्वेस्टिगेशंस देखे अब तक: ब्लड कल्चर, सीरोलॉजी, ECG, चेस्ट एक्सरे. अब जो 5th है वो है इकोकार्डियोग्राफी. इट इज़ टू एक्सेस द कार्डियक फंक्शन, साइज एंड साइट ऑफ वेजिटेशन, देन एक्सेस वाल्व डैमेज एंड अपसेस फॉर्मेशन. इसमें हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं. फर्स्ट इज ट्रांसथोरेसिक इको, जो कि नॉन इन्वेजिव फर्स्ट लाइन इमेजिंग टेस्ट है. Then it demonstrates vegetations, valvular dysfunction
एंड अपसेस। देन सेकेंड पॉइंट हमें लिखना है इसमें ट्रांस इसोफेजियल इको. It is second line invasive imaging test and it can detect vegetation even smaller ones like 1 into 1.5 mm and aortic root abscess. Then sixth investigation is CBC. In CBC there is normocytic normochromic anemia and there is decrease in platelets. Liver function test shows increase in alkaline phosphatase enzyme. In kidney function test, there is increase in blood urea and serum creatinine. Then inflammatory markers, ESR increase and C-reactive protein increase. Then another investigation is urine, proteinuria and hematuria occurs frequently. So हमने investigations में ये 10 investigations करने हैं. हमने कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस देखे? ब्लड कल्चर, सीरोलॉजी, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, उसमें 2 ट्रांसथोरेसिक इको एंड ट्रांस इसोफेजियल इको, देन सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एंड यूरिन. इतनी टेस्ट करनी पड़ेगी. देन हम देखेंगे ड्यूक्स क्राइटेरिया फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. Let's see about Duke's criteria for infective endocarditis. Duke's criteria में 2 criteria होते हैं. First is pathological criteria and second one is clinical criteria. Pathological criteria में infective endocarditis तब confirm माना जाता है अगर direct evidence मिले. तो इसमें हमें क्या लिखना है कि demonstration of microorganisms by culture or histologic examination in vegetation, embolus from vegetation and intracardiac abscess. Then second criteria is clinical criteria. Clinical criteria में हमें major criteria और minor criteria ये दोनों criteria लिखने पड़ेंगे. So major criteria में 2 criteria है majors. First is positive blood culture for infective endocarditis. इसमें हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं. फ्रॉम 2 सेपरेट ब्लड कल्चर्स और परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर और सिंगल पॉजिटिव कल्चर फॉर कोक्सिएला बर्निएटी. देन सेकेंड इज एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट. We have to write the first point, echocardium shows vegetation or abscess, and second point is new valvular regurgitation. So all these are major criteria. Then minor criteria. In minor criteria, there fever is greater than 38 degrees Celsius. Microbiological evidence. In this, a single culture positive without meeting a major criteria. Then immunological evidence. Focal segmental glomerulonephritis, Osler nodes, and Roth spots. Then fourth is vascular phenomenon. It includes petechiae, subungual hemorrhages, conjunctival hemorrhages, Genevieve lesions. Then predisposing heart lesion or IV drug abuser. So 5 features in the minor criteria and 2 features in major criteria. So in clinical criteria, there are 2 endocarditis. First is definite endocarditis and second one is possible endocarditis. In definite endocarditis, if 2 major criteria or 1 major criteria plus 3 minor or 5 minor criteria are present, then it is known as definite endocarditis. And in possible endocarditis, 1 major criteria plus 1 minor criteria or 3 minor criteria if present, then it is possible endocarditis. So इस तरीके से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एंडोकार्डाइटिस है अकॉर्डिंग टू द मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया. अभी माइनर क्राइटेरिया के जो फीचर्स है उनको रिमेंबर करने के लिए निमोनिक है VIPMF. V मीन्स वास्कुलर फिनोमिना,
I से immunological evidence, P से predisposition, M से microbiological evidence and F से fever greater than 38 डिग्री सेल्सियस। देन हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। In management, we have to write medical management and surgical management. In medical management, the first point is blood culture before starting empirical antibiotic therapy. Then we have to write the second point. If source of infection found, remove it. For example, tooth with apical abscess should be extracted. Then third, empirical treatment regimen, antimicrobial. इसमें सिचुएशन वाइज ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर रिपोर्ट अवेटिंग है और कल्चर अभी पेंडिंग है तो इस केस में एंटीबायोटिक रेजिमेन होंगे बेंजाइल पेनिसिलिन IV 1.24 आवर्ली फॉर 4 to 6 weeks प्लस जेंटामाइसिन IV 80 mg of 12 hourly for 2 to 6 weeks and second is IV drug abuser और recent cardiac surgery। इस केस में वैंकोमाइसिन 1 ग्राम 12 आवर्ली फॉर 6 weeks देंगे और प्लस जेंटामाइसिन। देन स्ट्रेप्टोकोकल एंडोकार्डाइटिस में बेंजाइल पेनिसिलिन, स्टैफिलोकोकल एंडोकार्डाइटिस में क्लोक्सासिलिन 2 ग्राम 6 आवर्ली और वी कैन गिव सेफेजोलिन प्लस वैंकोमाइसिन। देन एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन 2 ग्राम 4 आवर्ली for 4 to 6 weeks twice a day plus gentamicin 1 milligram per kg twice daily. Then candida, amphotericin B 1 milligram per kg once daily for 2 weeks. Then coxiella, doxycycline 100 mg twice daily. इस तरीके से हमें सिचुएशन वाइज एंटीबायोटिक उसके सामने लिखने हैं। देन इन सेकेंड पार्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट। अभी हमें देखना है कि सर्जरी में क्या होता है। सो इन्फेक्टेड मटेरियल का डिब्राइडमेंट होता है एंड वॉल रिपेयर होती है और वॉल का रिप्लेसमेंट किया जाता है एंड एंटीबायोटिक्स हमेशा सर्जरी के पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या लिखना है, सर्जिकल मैनेजमेंट के केस में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ डिब्राइडमेंट ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल एंड वॉल रिप्लेसमेंट। देन सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी शुड बी स्टार्टेड बिफोर सर्जरी। देन इधर इंडिकेशंस दिए हैं कि किस कंडीशन पर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये 6 इंडिकेशंस हमें एग्जाम में लिखने हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक मैंने बनाया है EAP SFP LP। E फॉर एंडोकार्डाइटिस ऑफ प्रोस्थेटिक वॉल, A फॉर abscess formation, P for perivalvular involvement, then S for S aureus, F for fungal endocarditis, then P for progressive cardiac failure due to valvular damage, L for large vegetation for greater than 10 mm, and P for persistent active infection, that is fever and bacteremia for greater than 7 to 10 days in spite of adequate antibiotic therapy. सो इस तरीके से हमें मैनेजमेंट पार्ट में मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों लिखने हैं। देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसको रिमेंबर करने के लिए हम यूज़ करेंगे निमोनिक सेरी। C फॉर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, E फॉर एम्बोलिक इवेंट्स, R फॉर रीनल कॉम्प्लिकेशंस and I for immunological phenomenon. So let's see the cardiac complications. These are due to direct valvular damage and consequences of local infection. So ये cardiac complications remember करने के लिए हम निमोनिक का यूज़ करेंगे जो कि है RPMR VVSCP। R for ring abscess, P for purulent pericarditis, M for myocardial abscess due to Staphylococcus aureus, then rupture and perforation of aorta, wall leaflet, intraventricular septa, valvular destruction, valvular dysfunction and heart failure, suppurative pericarditis, conduction abnormalities and prosthetic dehiscence. अभी हम देखते हैं रिंग अब्सेस में क्या होता है।
रिंग अब्सेस में वॉल के बेस में पस कलेक्शन हो जाता है। देन पुरुलेंट पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होकर पेरिकार्डियम में पस क्रिएट होता है। देन मायोकार्डियल अब्सेस में क्या होता है, हार्ट मसल में अब्सेस क्रिएट होता है। देन रप्चर एंड परफोरेशन ऑफ एओर्टा के केस में वॉल लिफलेट्स टूट जाते हैं, तो इसीलिए सीवियर रिगर्जिटेशन होता है। देन वाल्वुलर डिस्ट्रक्शन, इस केस में परमानेंट वॉल डैमेज हो जाती है। देन वाल्वुलर डिसफंक्शन, इसमें हार्ट फेलियर होता है एंड ये सबसे कॉमन है और सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। देन सुपरेटिव पेरिकार्डाइटिस एंड देन कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज, अब्सेस एवी नोड को डैमेज करे तो एवी ब्लॉक क्रिएट होता है, इसीलिए कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है। देन प्रोस्थेटिक वॉल डेहिसंस, इसमें आर्टिफिशियल वॉल लूज हो जाता है। देन हम देख लेते हैं रीनल कॉम्प्लिकेशंस। इसको रिमेंबर करने के लिए हम न्यूमोनिक का यूज़ करेंगे, PGMR, P फॉर प्री रीनल फेलियर ड्यू टू लो कार्डियक आउटपुट। Then second is glomerular dysfunction due to circulating immune complexes. Third is microabscess formation secondary to septic emboli. And fourth is renal failure due to antibiotics. Then third complications are embolic complications. ये क्यों होते हैं, वेजिटेशंस फ्राइबल होते हैं एंड इजीली टूट जाते हैं, तो वेजिटेशन ब्रेक होने की वजह से एम्बोलिज्म बन जाता है, तो स्मॉल स्मॉल एम्बोलाई बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिंटर हिमोरेजेस, सबंगुअल हिमोरेजेस, जेनवे लेजन्स क्रिएट होते हैं, सेप्टिक इन्फार्क्ट्स क्रिएट होते हैं स्प्लीन, किडनी, ब्रेन में, माइकोटिक एन्यूरिज्म होता है एंड सेप्टिक एम्बोलाई फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट, दैट इज पल्मोनरी अब्सेस क्रिएट होता है। तो एम्बोलाई के इवेंट्स को याद रखने के लिए हम न्यूमोनिक का यूज़ करेंगे, VSS-MP। V से vegetations are usually friable and likely to break, detach and cause embolism. S से small emboli, splinter, subungual hemorrhages and Janeway lesions. Then another S से septic infarcts in spleen, kidney and brain. Then M for mycotic aneurysm and P for pulmonary abscess. Then fourth complications are immunological phenomenon. Then immunological complications में 3 लिखने हैं। FSGS means focal segmental glomerulosclerosis. It is due to antigen antibody deposition. Then second is osseous nodes, small tender subcutaneous nodules in the pulp of digits. Then third is Roth spots, retinal hemorrhages with white or pale centers composed of fibrin. So इस तरीके से हमें कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्ट एंडोकार्डाइटिस लर्न करने हैं एंड इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।